It is holding oneself. So what does it mean, holding oneself? Holding oneself is that when I just, you have to do one thing. First, you have to close your eyes, everyone. Think there is no one around you. You can listen to me. It's a voice coming from somewhere, Just think that maybe it's your zameen or conscience which is speaking up. So just think that no one is around you. If you will get into this exercise, believe me, you will be on board with me through all this journey. So just concentrate, breathe in, 5 counts, 1, 2, 3, 4, 5, breathe in, like this, just then breathe out. You can also be with me, no problem at all. So breathe out for 5 counts. If your body is relaxed, now just think you are in front of a mirror. The mirror must be clear. It's not be blurred enough. Can you see yourself there in the mirror? Can you see that? Focus on that. You must see yourself in the mirror. If you are able to see yourself in the mirror, if someone is saying no, it means they are not concentrating. Just now just uncover yourself like you are watching your soul, not your physical body. Just imagine you are looking at your own soul, the soul you want to be or the soul you are. There are few people who are not with me, they are not concentrating, not looking in. Are you able to see yourself? Don't tell me, but just focus and see if it's the soul that is happy, fully grown, happy, and blessed, or it is something like which is torn out, or maybe wounded soul you are seeing inside the mirror. It's the one you never liked it. So, hope you all are there. Yes. So just come out of that. Come out of that zone. Okay, so I'm sure that you have gone and you have seen a soul. That is your soul. And if you haven't seen that, next time try it again when you are free enough and you are in solitude. MashaAllah, you have so many green spaces outside. So if ever you feel that this trainer, this facilitator was saying you something and I was not be able to get into that space, try it again. Because it needs practice to be there and then coming out of it. But why it's important to see myself in the mirror? This is very important to see myself, my soul in the mirror, because when I see at my soul in the mirror, I realize that what's something missing, that I need to be like that, For example, we used to say that I really admire that person, like maybe you see that there are so many khanams you mostly interact with, and most of them you may be liking them so much that you consider that they are your role model, but you feel like you are something behind them. So why so? Because you are not working on yourself. So first is that we have to look into ourselves in the mirror, and time and again, Imam Ali alayhi salam said that
बेहतरीन वो लोग हैं जो रात को सोने से पहले एक दफ़ा अपना मुहासबा करते हैं. So yes, you can exercise this thing even before sleeping and just see yourself in the mirror for a while. What will happen? What will happen when I'll see myself in the mirror? What will happen that when I'll chronologically see in an order that this is what I've done 15 minutes before, then I've done this before, then and carry on, I will realize that I have done this positive things, this negative thing, or this is something which I've said to someone which I could maybe replace with these words. हो जाता है ना, we used to say someone, आपने ऐसा क्यों किया, why you were like this, आप कहते हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, वो मेरी हेल्प नहीं करती, आपने देखा है वो मेरे जब मैं देखती हूँ वो मुंह चढ़ा लेती है. हम ये सोचते हैं, this is what we think, and then we create a person in our mind who is like that. In fact वो बंदा ऐसा नहीं होता, but because we have perceived that person like this, we start thinking that that person is, yes, वो अच्छी नहीं है, वो मेरे साथ helpful नहीं है, she never helped me in making notes or something like that. या इवन जो लोग हॉस्टलाइट्स होते हैं, आप में से जो हॉस्टलाइट्स हैं, दे हैव मे बी द इशूज़ दैट द अदर पर्सन इज़ वेरी बैड विद मी, शी इज़ नॉट हेल्पफुल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो क्या ये सब क्यों होता है? बिकॉज वी डोंट look at ourselves, our souls, and we don't realize that this is what is my problem, not her problem. This is what is going with me. So हमें सबसे पहले क्या करना है? We have to look at ourselves and we have to realize that this is what I feel bad about others and why so. So पहला है holding oneself. So then when you hold yourself in the mirror, the first thing which comes to your mind is understanding. जो मैंने भी आपसे बताया, जो डिस्कस किया, that is what is understanding. So when we look ourselves in the mirror and we realize that our soul is not a happy soul, she is frustrated, it's down and not, emotionally charged, उसको बहुत energy चाहिए from somewhere. So basically energy कभी भी बाहर से नहीं आएगी. You are the one who will create that energy. You will create that energy. So सबसे पहले जब आपने hold yourself कर लिया, the second thing is coming into your mind is understanding. And understanding not just about myself, but the world around me. And I realized that yes, if that person was in a problem, in a hurry, in a bad mood, maybe I could at that moment be easy and could be flexible and could be happily, managing that all affair. लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है कि हम दूसरे शख्स को जो हमारे सामने होता है, हम उसको उस तरह से अच्छी तरीके से डील नहीं कर पाते. एंड एट द एंड क्या होता है? वी स्टार्ट एज्यूमिंग दैट द पर्सन इज रॉन्ग. But you would be amazed to understand that when we start looking at ourselves in the mirror, the understanding that comes to your mind is that everyone around you, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से है, they all are just like you. They are all struggling. वो सब के सब स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब के सब उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं. I hope I'm not getting you, let you bored. लेकिन हमें इस जर्नी को जब हम पहला holding oneself in the mirror, then we understand not ourselves but the people around us as well. और उसके बाद जब हमारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि everyone is around us is just like us, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जब भी कभी when you feel that other people are not like you and they are this and that, हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो हमने उस वक्त हमेशा एक चीज़ को जहन में रखना है कि God has given them the opportunity to be in this world just like you. Do you know that there are thousands of sperms that travel through, एंड उसके बाद उसमें से कोई एक होता है जिसे परवरदिगार इज़्न देता है और कुन कहता है और वो फिर होता है, और फिर आप अपने माँ के वजूद से उसका हिस्सा बनते हैं, फिर उस माँ के वजूद से निकलते हैं और इस दुनिया में आ जाते हैं.
So this all process of जो खुदा की तरफ से एक मिराकुलस पूरा प्रोसीजर है, ये हर एक के साथ हुआ है. सो डोंट यू अमेज्ड कि जो आपके साथ वाला बंदा है वो भी इतने ही स्ट्रगल खुदा की कुदरत से उस छोटी से दुनिया में जो उसकी माँ की कोख थी उसमें रहा, एंड देन दे हैव रियलाइज्ड कि ये सारा प्रोसीजर करते करते वो फिर इस दुनिया में आया. सो यू आर ब्लेस्ड टू बी इन दिस वर्ल्ड एंड दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड to be in this world. So this understanding basically enables you to realize that they are special and you are also special. So what happens when you understand this fact? उसी लम्हे आपके जहन में जैसे ही आप ये रियलाइज़ करते हैं कि वो भी स्पेशल है एंड यू आर ऑल्सो वेरी स्पेशल एंड एवरी वन शुड बी केयर्ड एंड लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इन ऑल पॉसिबल वेज, तो फिर क्या होता है, फिर यू लीड टूवर्ड्स द एस थिंग. और ये एस क्या है? एस इज सेल्फ कंट्रोल. जैसे मैंने कहा कि व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट अदर पर्सन कुड हैव सम इश्यूज, मे बी उसके फैमिली में कोई इशू था, मे बी मे बी दे आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग जो वो शायद आपसे शेयर ही नहीं कर सकते हैं. ऐसी भी बहुत सी बातें होती हैं. So when we realize that yes, the other person can also be struggling and I am also struggling in my own ways, then what happens? तो फिर हम सेल्फ कंट्रोल की तरफ जाते हैं. हमारी खुद ब खुद वो सोल जिसे हमने अपना शीशे में शक्ल दिखाई थी कि दिस इज़ व्हाट यू आर, दिस इज़ व्हाट यू नॉट टू बी, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू बी. जब हमने वो चेकलिस्ट बनाया हैव टू बी नॉट टू बी वाली, देन हमने अंडरस्टैंड किया लोगों को, और जब हमने लोगों को अंडरस्टैंड किया देन वी कम टू द स्टेज ऑफ सेल्फ कंट्रोल. एंड दिस सेल्फ कंट्रोल इज, जैसे कहते हैं कि डोंट कंट्रोल अदर्स, कंट्रोल योर ओन बिहेवियर. हाँ, सो फर्स्ट व्हाट हैपन्स, जो कुछ आपने देखा कि उस लड़की ने या उस शख्स ने आपके साथ किया, जो डेली लाइफ के देयर आर सो मेनी अफेयर्स. आई नो, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ PhD एंड आई नो दैट व्हाट कुड बी योर इश्यूज. ओके, मैं सारा दिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. आई नो व्हाट आर योर इश्यूज. असाइनमेंट नहीं बनी है, टीचर ने क्लास में लेट हो गया है, उसने मेरी शिकायत लगा दी, उसने मेरी बैक बाइटिंग कर दी, उसने फलां किया. सो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज ऑफ दिस कैडर और दिस टाइप. बट हमने उस वक्त क्या करना है? एट दैट मोमेंट शुड आई रिएक्ट और शुड आई होल्ड माई सेल्फ? होल्ड माई सेल्फ. एंड you would be amazed कि 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड, रिसर्च ने बताया है कि 5 to 10 seconds are the time when you have to decide that you have to do this or control yourself. आपको आपका ज़मीर सिर्फ 10 से 15 सेकेंड के लिए बताता है कि do this, और उसके बाद आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, दिस इज़ योर ओपिनियन. आप सुबह को नमाज शब के लिए उठना चाह रहे हैं, फजर के लिए उठना चाह रहे हैं, आप एक दफ़ा अलार्म होता है, यू जस्ट उसे स्विच, आप उसे बंद कर देते हैं, स्नूज़ पे लगा देते हैं. दूसरी बार होता है, पता चलता है, वही 15 सेकेंड होते हैं जिसका पता चलता है. इसी तरह आपसे जब कोई बिहेवियर, कोई नेगेटिव बिहेवियर शो करता है, ये क्या किया है, आके ज़ोर से कुछ मारा या कुछ डांटा या गुस्सा किया, नाउ शुड आई रिएक्ट एंड आई शुड होल्ड माई सेल्फ. Hold myself. So self-control is the key. I'm again repeating so that कोई एक बच्चा जो मुझे लास्ट में बताएगा उसके लिए हम छोटा सा सरप्राइज रखेंगे. So जो बच्चा मुझे बताएगा कि what was this H thing in the whole TH experiment, we will give them a token of love. Okay, so what, anything could be there, the token of love could be anything. So we hold yourself, then you come to understanding, and then you look at the S thing, and that is self-control. So you just start controlling yourself, and believe me, आप आज से ही करना शुरू करें. That just holding yourself के ऊपर काम करना शुरू करें, self control के ऊपर काम करना शुरू करें. You will see that everyone is loving around you, like everyone is loving who is around you. Okay. So आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपसे गुस्सा कर रहा है. हाँ, हो सकता है कोई अलग से जाके कर रहा हो, लेकिन शायद उसको भी उस चीज़ की ज़रूरत है. माशाल्लाह, नाउ यू ऑल आर इन दिस सेशन. आई होप कि यू विल टेक इवन वन ऑफ द थिंग, वन ऑफ द पॉइंट, एंड इट विल कैरी विद यू. यू विल बी, योर लाइफ वुड गोना बी चेंज इंशाल्लाह. सो then when you will hold yourself,
and you control yourself, what happens? That another S appears, okay? So this is the S of selflessness. This is the S of so low, you're down. This is the S of selflessness. So the selflessness basically comes with the idea that when you control yourself, ultimately you realize, you tune yourself to be in the mode of selflessness. Selflessness क्या है? मैं हर चीज़ में दे रही हूँ, मुझे लेने की तवक्को ख़त्म हो गई है. I'm not doing anything. I'm not going to speak a word just because कोई खुश हो जाएगा, या मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रही. आप जब किसी को अच्छा लफ्ज़ बोलते हैं तो उसको खुशी होती है या आपको खुशी होती है? पहले किसको खुशी होती है? तो बिल्कुल उसको खुशी होती है? नहीं. जो पहली जब जैसे ही आप डिसाइड करते हो ना कि यू आर गोइंग टू प्रेज दैट पर्सन, तो जो सबसे पहले डेवलप होता है हार्मोन आपकी बॉडी में होता है. एंड द हैप्पी हार्मोन, द प्लेजेंट हार्मोन ब्रिंग अमेजिंग चेंजेस इन योर बॉडी. आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. आपने देखा है जब कोई दोस्त आपकी प्यारी लग रही होती है, तो बहुत प्यारी लग रही हो, उसके बाद यू विल फील गुड कि हाँ मैंने उसको ये अच्छा बोला. हाँ, और अगर आप किसी को कहते हैं क्या है, कैसी हो, ये है वो, उसके बाद कितनी देर तक योर बॉडी बिहेव्स लाइक व्हाई इट इज हैपेंड, और आपके पूरे स्ट्रेन आता है, ये जिसम में दुखती है. हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. आप सब लोग अपनी क्लेंच योर फिस्ट, ऐसे करके जोर से अपनी क्लेंच करें फिस्ट को, दोनों को पकड़ के जोर से दबाएं, जितना जोर से कोई दबा सकता है. ओनली फॉर 5 सेकेंड्स जस्ट दबाना है, जितना जोर से भी दबा सकते हैं दबाए. One, 2, 3, 4, 5. Open it. Open it. जब फिस्ट को दबाया हुआ था, how were you feeling? हाँ, स्ट्रेन थे ना, दर्द नहीं हुआ? वो कह रही है नहीं हुआ. ये आप ही कह रहे हो कि नहीं हुआ. अच्छा, और जब खोला तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. इसका मतलब है जिनको कुछ नहीं हुआ ना, उन्होंने बेसिकली फिस्ट को क्लेंच ही नहीं किया था. उन्होंने समझा कि सर्दी लग रही है, बस यूं दबाया. बट बेसिकली व्हाट हैपन्स, हम बेसिकली स्टोन के साथ भी करते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट, कि स्टोन आपके हाथ में देते एंड वी सेड के यू जस्ट होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स. उसके बाद जब खोलते हैं तो आपके हाथ में डेफिनेटली दर्द होता है ना, जब आप पत्थर को पकड़ के रखेंगे थोड़ी देर तक, और जब आप उसको गिरा देंगे तो उसके फ़ौरन बाद यू फील रिलैक्स. तो बेसिकली व्हाट इज़ इट, दिस इज़ व्हाट, जब आप किसी के लिए कोई ग्रज अपने दिल में रखेंगे, आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेन आएगा, पूरी बॉडी में. इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेन नहीं आएगा. सो यू विल डेफिनेटली फील स्ट्रेन्ड, और आपका ये जो स्ट्रेन है, ये जो सारी तकलीफ़ है, वो कैसे ख़त्म होती है? जैसे ही आप यू लेट गो. सो बिलीव इन लेट गो, लेटिंग गो, कि ये इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, मैंने ये किया, उसने ये किया, मैं हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव करती हूँ, वो नहीं करती है. मेरे पेरेंट्स, इवन आप अपनी फैमिली की तरफ भी सोच सकते हैं सारी बातें, सिर्फ क्लासमेट्स के साथ नहीं. फैमिली में बहुत से होते हैं, कज़न्स के साथ आपका एक जैसे कहते हैं चल रही होती है, राइवलरी चल रही होती है कि, और आप हमेशा सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बुरा है. But when you are exercising these 3-4 steps and you reach at the level of selflessness, at that moment what happens, that each of your actions, your behavior patterns, everything, जो कुछ भी है, वो सब कुछ translate होती है आपके body और actions में, and you start giving, and giving not for the sake that the other person will recognize you. अगर यहाँ पर अभी हम देख पाते तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो रखी हुई थी हमने, जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है डॉक्टर इमोटो का. उन्होंने क्या किया कि ही बेसिकली वाटर क्रिस्टल्स जो हैं उनके ऊपर काम किया, कि जो वाटर क्रिस्टल्स होते हैं, व्हेन यू स्पीक समथिंग गुड टू दैट वाटर, हैव यू हर्ड अबाउट इट? या. So when you speak something good about it,
वाटर क्रिस्टल्स डिफरेंट फॉर्म होते हैं. व्हेन यू से हेट तो वो उसी तरह बन जाते हैं. व्हेन यू से आई लव यू वो बहुत प्यारे से कोई डायमंड की शक्ल में, कोई किसी तरह से डिफरेंट वाटर क्रिस्टल्स बनते हैं. सो व्हाट बेसिकली दे से एंड दे एक्सप्लेन टू अस, दे शो दैट बेसिकली आवर वर्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट. और डू यू नो दैट कितना है पूरा पानी पूरी दुनिया में और हमारी बॉडी में 50 to 70% वाटर है. सो अगर हमारी बॉडी 50 to 70% पे चली जाती है तो क्या है, यानी इतना ज़्यादा पानी है. और अब इस पानी में जो एक बोतल में पानी है और एक मेरे वजूद के अंदर पानी है, तो पानी तो तासीर तो वही रहेगी ना, उसकी तासीर वही रहेगी, उस पर असर भी वैसे ही होगा. सो दिस इज़ हाउ योर वर्ड्स इम्पैक्ट ऑन एनी person. When you say something bad to them, it impacts them. So हमें क्या करना है, हमें selfless हो जाना है through our actions, through our deeds. And I wish that if it will be working, it's great. हम इसको फिर Do we have time? We can. आपकी क्लास है उसके बाद? हाँ जी, बस ये दो वीडियोस हैं, उसके बाद हाँ. सो बेसिकली जो हमारे लफ्ज़ हैं दे आर इम्पॉर्टेंट. सो वी हैव टू बी सेल्फलेस, एंड सेल्फलेस इज द पर्सन हु ओनली गिव्स फॉर द सेक ऑफ हिज ओन बीइंग. हमेशा ध्यान में रखें, जो चीज़ सबसे दुनिया में इम्पॉर्टेंट है वो कौन है? ग्रेट, क्लैप करें उस बच्चे के लिए. क्यों हम इम्पॉर्टेंट हैं? क्या? अशरफुल मखलूकात है. ओके, और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वी आर द कैलिफ ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ. हाँ, हम खुदा के नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदे जिन्होंने उसके सारे मैसेजेस को इस दुनिया में इम्प्लीमेंट करना है. अब इमाम ज़माना हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो उनकी ग़ैबत में वी आर द पर्सन हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिमसेल्फ. और अगर हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सो वी हैव टू बी लुक लाइक रिप्रेजेंटेटिव. You can't reach the internet right now. Check your modem or router connection and try again. It's not working. अच्छा भाई, आप लोगों का नसीब है. अच्छा, मैंने पूछा था इसीलिए कि पहले वीडियो है. ओके, चलिए कोई मसला नहीं. हम कौन सी स्टेज तक आ गए थे? Okay, so when we reach at this stage of selflessness, what do you think? What could be the next stage? Just guess करें. जब selflessness आ जाती है तो उसके बाद इससे मिलता जुलता एक और क्या चीज़ पैदा हो सकती है? हाँ, नो एक्सपेक्टेशन भी उसी के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है. सेल्फलेसनेस में तो डेफिनेटली सेल्फलेसनेस आएगी तब व्हेन आई हैव नो एक्सपेक्टेशन. ये तो हम उसी के अंदर ही घूमेंगे. अच्छा, और कोई गेस तो करें. खुद से नहीं बातें करनी, मुझे बताना. अच्छा, इससे मिलता जुलता ये है कि व्हेन वी बी सेल्फलेस व्हाट हैपन्स. अभी हम सेल्फलेस क्यों होते हैं? हम सेल्फलेस क्यों होते हैं? और हम सेल्फिश क्यों होते हैं? हम सेल्फिश तब होते हैं व्हेन वी हैव इंटरेस्ट्स, कि ये लड़की मेरी हेल्प करेगी, इसके साथ अच्छी बना के रखो, ठीक है, या ये बड़ी प्यारी है, मुझे भी प्यारे लोग पसंद है, मैंने तो इसके साथ ही दोस्ती करनी, ठीक है, या ये बड़ा अच्छा खाना बनाती है, यार ये शेयरिंग बहुत अच्छी करती है, ये अपने नोट्स भी दे देती है. अक्सर हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, इवन बहन भाइयों में भी, जो हमारी बहुत ओबीडियंट और बहुत अच्छा हर वक्त हैप्पी गो लकी चाम वाले बच्चे होते हैं ना, जिनके साथ हम हमेशा फील करते हैं कि यस हम भी अच्छे बच्चों में शुमार होंगे, इनके साथ रहेंगे, तो हम हमेशा उनके साथ रहते हैं. सो बेसिकली
हमेशा तब लोगों के साथ जुड़ते व्हेन वी हैव इंटरेस्ट, ओके। लेकिन जब आप सेल्फलेस हो जाते हैं, व्हेन यू डोंट थिंक ऑफ योर इंटरेस्ट, देन एवरीबडी वुड बी सेम फॉर यू। आप सेल्फिश क्यों हुए? क्योंकि आपके इंटरेस्ट थे, तो वो आपको बंदा अच्छा लगा, आप उसके साथ जुड़ गए। अभी मैंने ये वाला खाने ख़त्म कर दिया है, सेल्फिश वाला। देयर इज़ नो सेल्फिश बॉक्स इन माय सोल। इसको अलग कर दिया मैंने खुद से। अभी क्या होगा? सब मेरे लिए बराबर होंगे? बराबर होंगे? अभी बहुत सारे हैं जिनको अभी भी नहीं लग रहा कि बराबर होंगे। तब मेरे लिए सब लोग बराबर होंगे, बिकॉज मुझे किसी से कोई नहीं लेना देना। मैं जो कुछ कर रहा हूँ कर रही हूँ, मैं अपने हैप्पीनेस के लिए कर रही हूँ, एंड फॉर द सेक ऑफ माई ओन सेल्फ, फॉर द सेक ऑफ हेल्थ ऑफ माई सेल्फ एंड द एनर्जी दैट माई बॉडी विल क्रिएट। आप बहुत से ऐसे लोग मिलते हो जो आप आगे चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। और कोई एक बंदा आता है, खामोशी से कोने में बैठ जाता है, बट यू जस्ट क्रेव फॉर दैट पर्सन। यस, मुझे जाना है, एक बार इनसे आप बात तो करें। क्या है उस शख्स के पास? उसके पास क्या है? उसके पास वो लाइट है। उसने अपनी बॉडी के ऊपर काम किया हुआ है, उसने अपनी सोल के ऊपर काम किया हुआ है। उसके पास वो लाइट है, वो लाइट आपको टच करती है। हर शख्स को इस दुनिया में जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, वी क्रेव फॉर दैट एनर्जी, बिकॉज वी आर एट हार्ट पॉजिटिव। हम सब के सब पॉजिटिव हैं, बिकॉज वी आर द वंस जिसे खुदा ने कहा कि तुम मेरी, जिसे खुदा ने अपने रूह, अपने सोल, अपने उससे बनाया। हाँ, कहा कि मैंने अपनी रूह को फूंका है। सो डोंट, इज दिस नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर द वन जिसको खुदा ने अपनी रूह से बनाया है? सो जब भी कहीं पॉजिटिविटी आएगी, अनकॉन्शियसली, जैसे ही नूर कह लें आप उसको, आप नूर कह लें, लाइट कह लें, पॉजिटिव एनर्जी कह लें, जैसी पॉजिटिव एनर्जी आपके सामने आती है, यू crave for that energy and you just go and say hello to them person। आप पूछते हैं आप कौन हैं, ये वो। So क्या होता है कि जब भी कोई हम सेल्फलेस हो जाते हैं, हम अपनी सोल पे काम करते हैं, तो अल्टीमेटली वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। सो A for acceptance, that we crave for the person। वो जो आया वो तो ठीक है, लेकिन हम हर एक को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कोई ही है। वो गुनहगार है, वो बेपर्दा है, वो मॉडर्न है, वो गाने को सुनने वाली है, वो बेहिजाबी है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कल्चर, रेस, रिलीजन, मुझे मैटर ही नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? बिकॉज आई रियलाइज, मैंने सिर्फ एक प्रिंसिपल को पकड़ लिया है, और वो प्रिंसिपल कोर है ह्यूमैनिटी का। और वो क्या है कि मुझे ये याद रहना चाहिए कि ये जो शख्स है ना सामने, ये भूल गया है, लेकिन असल में ये भी रूह खुदा है। हाँ, इस पे भी खुदा ने अपनी रूह को अलका किया है, भेजा है। सो ये स्पेशल है कि नहीं? वो स्पेशल है। उसको नहीं पता कि वो अपनी अगर चीज़ें छोड़ गया है, भूल गया है, डी-ट्रैक हो गया। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। माई बिजनेस इज टू अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट दैट पर्सन एज दैट पर्सन इज। आपके 10 यहाँ पे क्लासमेट्स होंगे, उनमें से 10 में कोई ना कोई इशू होगा। किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को ग़ीबत की आदत है, किसी चुगली की आदत है। तो क्या मैं उससे मुबर्रा हूँ? मैं वो काम नहीं करती। उसका शायद मशहूर ज़्यादा हो गया, बट अगर मेरा मशहूर नहीं हुआ तो डज इट मीन दैट आई हैव टू ब्लेम दैट पर्सन? नो वे। मुझे उसको एक्सेप्ट करना है एज दे आर। आप यूँ समझें, एक मकान में गंदगी हुई हुई है, आपके रूम में गंदगी हुई है, आपके हॉस्टल के कमरे में गंदगी हुई है। अभी आप बाहर खड़े होकर कहें बहुत गंदगी है अंदर, बहुत बू आ रही है यार, सफाई नहीं हुई हुई, बिल्कुल बहुत बू आ रही है। आप सारा दिन खड़े होकर आवाज़ें देते रहे, यार बहुत बू आ रही है, बहुत गंदा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। विल इट मैटर? व्हाट मैटर? You have to go inside the dirty, unclean room, and then you have to clean that out. You have to wipe that out. You have to go and do dusting, you know. So आप ही हैं जिसने अंदर जाना है, और अंदर कब जाएंगे? When you accept this reality that you have to be there and have to clean that person or the thing which is dirty or which is unclean.
सो हमेशा जहन में रखिए कि जो शख्स अगर आपके सामने मिल रहा है वो आपके आइडिया से मैच नहीं करता, तो इट डजंट मीन दैट यू हैव टू लीव देम अलोन. आप उनके साथ बैठें तो सही, हाँ, उनके साथ बात तो करें. यू हैव टू एक्सेप्ट देम एज दे आर. एंड देन ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी. वी बिकॉज हम खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है. सो व्हेन वी एक्नॉलेज दिस थिंग और हम दूसरे को वैल्यू करते हैं, अल्टीमेटली आपकी पॉजिटिव और उनकी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करती है और देन इट इम्पैक्ट्स बोथ ऑफ यू. और वो जो हम कहते हैं ना असर होता है, उसकी बात में असर होता है, उसकी बात में असर है, मेरी बात में पता नहीं क्यों असर नहीं है. तो द रीज़न इज दैट यू आर नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स टू द पॉइंट वेयर इट शुड बी कनेक्टेड. सो हमें सबसे ज़्यादा काम एक्सेप्टेंस पे करना है. जो जैसा है, आज आप लोग इस सेशन के बाद जिनसे आपने अभी तक बात नहीं की या जिनसे आप कम बात करते हैं, उनसे आज आपने हेलो हाय करना है, उनके साथ अच्छी शेयरिंग करनी है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है. सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है? यस. सो जस्ट इस चीज़ को जहन में रखिए कि आपने अपनी सोल को इतना ऊंचा करना है कि वो जो हम कहा करते हैं कि मैं नहीं रहता, तू हो जाता है, यानी खुदा तू हो जाता है. हाँ, वो स्टेज कब आती है? जब मैं एक्सेप्टेंस की तरफ जाता हूँ एंड आई जस्ट थिंक कि उससे कनेक्ट होना है और उसकी वजह से इन सब से कनेक्ट होना है. So I have to realize this thing that everyone who is around me, they are very special. I love them wholeheartedly. Give them good messages. Talk to them. Share your emotions. और ये जो ज़बान अल्लाह ने दी है ना, बहुत प्यारी चीज़ है. इसको इस्तेमाल करें. इसको हमने छुपा के कहीं नहीं रखना, ठीक है? इससे कोई प्यारा लग रहा है, एक बार ज़रूर कहें हाँ कि आप बहुत प्यारी लग रही हो. जलने की क्या ज़रूरत है? मेरे उसके कपड़े ज़्यादा प्यारे लग रहे, मेरे नहीं लग रहे. मैंने तो आज तक के बाद तारीफ ही नहीं करनी इसकी, ये तो मेरी करती नहीं है तो मैं क्यों करूं? हाँ, सो जस्ट थिंक इट कि यू हैव टू प्रेज द अदर पर्सन, यू हैव टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन, एंड देन व्हाट विल कम? यू विल गेन दैट एनर्जी इन योर सेल्फ एंड यू विल बी रेडी, दैट यू विल बी इन दैट पोजिशन जिसे हम आई फॉर इंटेग्रिटी कहते हैं. दैट देन व्हेन ऑल दीज स्टेप्स दे विल बी इन अ ऑर्डर. और आप इन सब स्टेजेस को, ये स्टेजेस हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक सेशन में पढ़ा के जा रही हूँ, लेकिन अगर आपने इन स्टेजेस को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, आप अकलीम फ़ातिमा को हमेशा याद रखेंगे और आप मुझे दुआ भी देंगे. और मुझे यकीन है कि आपके साथ कोई ना कोई एक बात ज़रूर जाएगी. और अगर आज हमारा ये कनेक्ट हो जाता और उसमें एक वीडियो ज़रूर देख लेते आप, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ ज़रूर पा लेते. लेकिन इंशाल्लाह मुझे फिर भी यकीन है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर कनेक्ट रहेगा. The thing is integrity. Integrity, what is integrity? That I connect all the things, all positivity into myself, और फिर मैं उस integrity का ऐसा नमूना बन जाता हूँ या बन जाती हूँ that I just start enjoying everything which is coming to me. इंटेग्रिटी क्या लाती है आपके अंदर? एक बॉडी के अंदर पीस डेवलप करती है. यू जस्ट फील, आप वो पीस हर कोई महसूस करेगा जब आपकी बॉडी इंटेग्रिटी होती है ना. जैसे आप कुछ लोगों से मिलते हैं, आपको लगता है कि वो बनावटी हैं, करते हैं ना हम लोग. हम मिलते हैं तो किस कहते हैं कि वो बनावटी सी थी. एक आप मिलते हैं, आप कहते हैं बहुत स्वीट थी, बहुत इनोसेंट थी, बहुत काम थी, बहुत. सो क्या होता है कि ये क्या है? ये सब वाइब्स हैं जो हमारी बॉडी से निकल रही हैं. और ये क्यों निकल रही है? द मोर यू विल वर्क ऑन द इंटेग्रिटी पार्ट. इवन मैं आपको बताऊं कि आई यूज टू लिसन, एक हमारा इंडियन आप नन तो नहीं कह सकते, इंडियन क्या कहते हैं इनके, ब्रह्मचारिया, वो हैं बी के शिफानी. आई यूज टू लिसन टू हर. शी इज़ जस्ट लव. आई रियली वॉन्ट टू से शी इज़ लव. वाई? उसने अपने ऊपर इतना काम किया है, इररिस्पेक्टिव को कि उसका रिलीजन क्या है, उस चीज़ को अलग कर दें. बट द वे शी हैज़ वर्कड ऑन हर सेल्फ, लोगों को एक्सेप्टेंस देना, लोगों को सेल्फलेसनेस देना, लोगों के साथ प्यार से पेश आना, नेगेटिव वाइब्स को खुद तक आने ना देना, पॉजिटिव वाइब्स को लेते जाना. दिस इज़ व्हाट उसकी बॉडी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यस ये है.
और आप ये हर जगह महसूस कर सकते हैं। ये कोई सिर्फ उस चूँकि वो एक मैं उनको सुनती हूँ एंड आई फील कि हमारी सारे रिलीजन्स की ना जो कोर वैल्यूज़ हैं वो एक है, बाकी ये सब ने अपने अपने बनाए हुए हैं लेकिन जो मोरालिटीज़ है या जो इम्पॉर्टेंट है या जो कनेक्ट टू द नेचर है, कनेक्ट टू द डिवाइन है, वो सब बातें एक सी हैं। सो व्हाट हैपन्स दैट व्हेन यू बी दैट इन दैट मोड, जब आप इंटीग्रिटी पा लेते हो, जब आप अपने वजूद को ऐसा बना लेते हो कि वो जो सारी चीज़ें आपने इकट्ठी की थी, जिसमें अंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें सेल्फ कंट्रोल था, जिसमें सेल्फलेसनेस थी, वो सब अब आपसे छूट नहीं रही हैं। होता है ना, कभी हम अच्छे बन जाते हैं, अभी माह रमज़ान मुबारक आएगा इंशाअल्लाह, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे बच्चे बन जाएंगे हम सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जैसे ही माह रमज़ान जा रहा होता है, हम भी वैसे वैसे साथ ही अपने साथ वो जो नेकी, जो हमने पाकीज़गी समेटी होती है, वो ऐसा ऐसा जारी होती है। वाई? बिकॉज वी आर नॉट कंट्रोलिंग दैट इंटीग्रिटी एंड वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग दैट ऑल दोज you can say ingredients within us. Like अगर आप चाय बनाते हैं, एक चीज़ भी कम हो जाए इंग्रेडिएंट, तो मज़ा आता है? नहीं आता। चाय का मज़ा तब आता है जब उसमें पत्ती भी अच्छी हो, हल्की चीनी हो, मतलब अगर जो लोग तेज़ पीते होंगे तेज़ अच्छी है, लेकिन दूध अच्छा हो, पानी सही डला हो, मतलब हर चीज़ की क्वांटिटी मुनासिब हो, तो फिर चाय मज़े की लगती है? नहीं लगती। बिल्कुल इसी तरह if your soul has not all those elements which are required for that integrity, for that peace, तो आप कभी भी वैसे नहीं रिएक्ट कर सकते। So and after that, जब when you are into that position, when you are integrating everything into yourself and you are not letting any of that element go, तो फिर next stage आती है, and this is N for noble model. N for noble? Okay, so N for noble? Yes. So can anyone tell that what is this? Yes, this is Hussain. This is? Yes, so here clap for her. So when you start with holding yourself, you understand yourself, then you self-control yourself, you adopt the ways to control yourself. When you realize to be selfless, when you accept others as they are, when you integrate yourself, all the components, then you will be the noble model. The noble model is Hussain. So this is, the abbreviation is Hussain, but it has one I left over, and this leftover I is for what? Hussaini. Yes. So when we reach to the end thing, the model, Hussaini model, when we realize कि हुसैन को देखें आप, हुसैन वो है when he leaves for Karbala, he knew what he has to do. He knew, उनको अपनी सोल का बहुत अच्छे से पता था, बहुत अच्छे से पता था that what are the qualities of my soul. So when he left Medina, he said that I am coming out for the cause, और मैं किसी फसाद की घर से नहीं आ रहा, मैं शर के लिए नहीं आ रहा. Why? Because he was self-aware. So वो पहला जो वो मिरर है, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हुसैन जानते थे कि what is it. Then we realize कि अगर हम हुसैन का दूसरा पार्ट देखिए, हुसैन has the understanding not of himself but the others. उन्हें पता था वो किससे बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं. Then he self control. कितनी बार उनको बुरा भला कहा गया, कितने लोगों ने उन्हें तकलीफ दी, but did he behaved in a wrong manner? कोई बता दे तारीख का लम्हा जिसमें हुसैन ने जलाल में किसी को ऐसा लफ्ज़ कहा हो जो जिसे बिलो द बेल्ट है? No. Why? Because Hussain has self-control. And then again there is another us. हम देखते हैं कि selflessness की तो इंतहा कर दी हुसैन ने. We see that the sacrifice that Hussain has done in the whole universe, in the whole world, no one can ever do that kind of selflessness. Have you ever seen anyone like him? वो हो ही नहीं सकता क्योंकि हुसैन हुसैन है. हाँ, सो उसके बाद जब हम सेल्फलेसनेस पर आ जाते हैं, देन वी रियलाइज कि हुसैन जब सेल्फलेसनेस दिखाते हैं तो ही एक्सेप्ट्स एवरीवन. वहाँ पे वाहिया कल्बी आ रहे हैं, कोई क्रिश्चियन आ रहा है, कोई हिंदू आ रहा है, कोई आ रहा है, हर कैडर का बंदा
उनकी ज़ुहैर इब्न क़ैन है जो उस्मानी ग्रुप से थे, वो भी आ रहे हैं, हुसैन सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो व्हाट हुसैन टेल्स अस दैट यस वी हैव टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर. एंड देन everything, you just look at Hussein and then all these steps, you will realize कि हुसैन ने वो सारी चीज़ों को किया, तो फिर he is the noble model. And when I implement this noble model into my life, मैं अपनी ज़िंदगी में इस उस हुसैन को, वो जो मॉडल मुझे दिया नोबल मॉडल, वो जैसे ही मैं इम्प्लीमेंट करने लगती हूँ, what happens, I become Hussaini. So this is called the TH experiment, यानी the Hussaini experiment. If you have any question, I am here. Any question? अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि हुसैन आपको कभी नहीं भूलते, आई एम श्योर. तो आपको हुसैनी मॉडल भी कभी नहीं भूलना चाहिए और आपको ये हुसैनी एक्सपेरिमेंट भी कभी नहीं भूलना चाहिए. आई बिलीव कि आप सब लोग इस हुसैनी एक्सपेरिमेंट को सुबह दोपहर शाम करें और मुझे ज़रूर बताइएगा ज़िंदगी में जब कभी मुझसे दोबारा मुलाकात हो कि डिड यू फाइंड एनी चेंज इन योर सोल. अब आप अपने मिरर में जब सोल को देखते हैं, हाउ वुड यू फील. सो ये आपने मुझे ज़रूर बताना है. आई वुड बी रेडी टू लिसन ब्यूटिफुल स्टोरीज़ और बहुत ज़्यादा कनेक्शन हुसैन के साथ और गॉड के साथ. ठीक है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.